اور آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. آپ کی قیادت سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک مثبت پیغام دیں گے, ہماری کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی بھی کریں گے اور ان کا حل بھی دیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یا آنے والی نسلوں کو یا جو شریف آدمی گھر میں بیٹھا ہے وہ خوف کی فضا میں زندہ رہے. چوئی صاحب, جس بچے نے اپنی ماں کو مرتے دیکھا ہے وہ کیا سوچے گا؟ جی خدا نہ ہاتھ میں ہتھیار ہی اٹھائے گا نا, کیا کرے گا؟ ہمدردی ہے اس کے ساتھ, پوری طرح سے ہم اس کا ساتھ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن خدا نہ خواستہ, میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ روڈ پہ, اس میں کتنے لوگ روزانہ یتیم بھی ہوتے ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں. بم دھماکے میں بہت فرق ہے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو ہمیں بطور ایک قوم اس کو سنبھالنا ہے, اس کے لیے لائعمل بنانا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت, لیکن پنجاب کی حکومت زیادہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے, مستقل تردید کر رہے ہیں, یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ داتا صاحب کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مان لیجئے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. دہشت گردی کو ہم نہیں مانتے, آپ کی حکومت نہیں مانتی, دہشت گردی وزیر قانون صاحب نہیں مانتے. میں ان کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنی حد تک یہ جواب دیتا ہوں جو میرے سامنے گورنمنٹ آف پنجاب کا کنڈکٹ ہے, اس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نہ صرف دہشت گردی کو مانتی ہے بلکہ دہشت کچھ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں کاروائی بھی کرنا چاہتے ہیں. جی میں ایک سیکنڈ ان سے بات کر لوں پھر میں آپ سے. میں شکریہ ادا کروں گا سما ٹی وی والوں کا کہ جتنی کوریج ہے سما ٹی وی والوں نے دی ہے کسی اور چینل والوں نے نہیں دی. یہ آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ہمارے پاک قطر والے لوگوں پہ یہ آسان کیا ہے کہ دوسری بار ادھر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک تو کیمروں کا وہ تھا, بالکل کیمرے نہیں لگے ہوئے, کیمرے نہیں تھے, بلکہ یہ کیمرے میں ایک آپ کے نوٹس میں بات لاؤں کہ یہ درگاہ بازار والوں نے ملک خرید کے خود جیب سے خرید کے 12 کیمرے ان کو دیے تھے اوقاف والوں کو. حکومت کی طرف سے نہیں تھے, یہ حکومت کی طرف سے نہیں تھے, نہیں لگائے, نہیں لگائے. یہ تو انکشاف ہے کہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں لگایا. میں عرض کرتا ہوں, کیمرہ لگ جانا بذات خود ایک مقصد نہیں ہے. کیمرہ جو ہے یہ بعد میں تو بتاتا ہے کہ کیا ہوا, یہ پہلے روکتا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کمی ہے ہمارے کیپیسٹی بلڈنگ کی, وہ تمام یہ صرف ایک اوقاف میں نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ کے یا ہمارے شعبوں میں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. اس میں یہ چیزیں نئی جس طرح کی یہ چیزیں آ رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ممکن ہے ہمیں اس میں سے کچھ باہر سے بھی منگوانا پڑے. ٹھیک, بالکل یہ بہت اہم بات ہے کیپیسٹی بلڈنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں کیسے خود سے پاکستان کے شہریوں کو کس طرح سے ایکٹیو ہونا پڑے گا, اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بچاؤ کیسا کرنا پڑے گا ریاست کے وجود کے باوجود اس کے ساتھ رہتے ہوئے. یہ نقطہ ہوگا بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. مجھ سے اے دوست نہ کر میرے تغافل کا گلا, ہاں مگر گردش ایام کا شکوہ کر لے. زندگی تیرے لیے وقف تو کر دوں لیکن ڈر رہا ہوں کہیں اوقاف نہ قبضہ کر لیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے. ہم یہاں پہ بہت یہ گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ کیسے سیکیورٹی ہونی چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو, شہریوں کو کس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس دروازے پہ 4 ماہ سے اس کے باہر جہاں پہ حملہ ہوا ہے پولیس تو بڑی دور کی بات, ایک رضاکار بھی تعینات نہیں تھا. یہ بہت بڑا سوال ہے چوئی صاحب, لیکن یہاں کچھ اور لوگوں سے میں بات کر لوں. جی آپ کیا کہیں گے؟ چوئی جاوید صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے عوامی سیاستدان ہیں, یہاں پہ تشریف لائے ہیں. باقیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ عوام کو جواب دینے کے لیے بھاگ گئے ہیں, وہ آنا نہیں چاہ رہے. تو یہاں پہ سیاسی یتیم ہیں ہم, سوائے 1-2 لیڈر ہمارے جو ہیں وہ عوام میں مقبول ہے. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں, ایسی بات ہے آپ اکیلے یہاں پہ موجود ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. اس کا انٹرویو آپ نے لینا ہوتا تو آپ کو اسلام آباد چلے جاتے بھائی, وہاں پہ آپ کو 2 دن دے دیتے. نہیں, میں چودھری صاحب کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو موجود ہے یہاں پہ دربار کی وجہ سے ہمارا کاروبار ہے, ظاہرین آتے ہیں, کوئی انڈسٹری نہیں ہے. بابا جی کا فیض ہے یہ, تو ہم پیچھے بھی بات مختصر لیجئے گا. بہت بہت بہتر. تجارت ختم ہو گئی ہے, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہاں تجارت ختم ہو گئی. جی دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردی کا اوریجن کیا ہے, کہاں سے یہ نکلا. صحیح پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ اوریجن کیا ہے. اوریجن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ فرنٹیئر ایریا میں, سوات ایریا میں, وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہو گیا, اور جیسے دیکھنا ہم نے یہ دیکھا نا, سبب دیکھنا ہے, اوریجن دیکھنا ہے. جیسے ہی نفاذ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ہی مزارات پہ وہاں پہ حملے شروع ہو گئے, فوراً. اب آپ دیکھیے اوریجن تو آپ کے پاس ہے, اب اس کا حل آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ
उस बुराई को वहां पे जाके दबाएं। ये ज़ाहिर स्टेट का काम है ये, और शहरियों ने साथ दिया है। इधर में जी प्लीज। चौधरी साहब फरमाते हैं बैठ के सोल्यूशन आपका सुल्तान बाहू साहब से ताल्लुक है? मैं हजरत सुल्तान बाहू के खानदान से हूँ और कोयटा बलूचिस्तान में मैं रहता हूँ। वहाँ पीरे बोलान हजरत फैज सुल्तान के दरबार का सजादा। आपको भी यही वहाँ पे परेशानी है? यही परेशानी है। हमारे दरबार पे सिक्योरिटी का नाम की चीज नहीं है। इवन बलूचिस्तान जैसे मुश्किल इलाके में मैं रहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और गवर्नमेंट सुनती तक नहीं है। अब जैसे 23 नुकात इब्तदा में इजलास हुआ था हमारा, पूरे पाकिस्तान से उलमा मशाइख इकट्ठे हुए थे जब दाता दरबार पे मुज़ाहमत पर जो हमला हुआ, उसमें हम सब ने मुत्तफ़िका तौर पर 23 नुकात एजेंडा पेश किया कि आप इस पर अमल करें तो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है अवाम को। लेकिन आज तक हमारी सुनी नहीं गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे मशाइख अगर दरबारों पे हाजिरी के लिए जाते हैं तो उनको रोका जाता है। हम अगर कहीं जाकर कोई इज्तिमा करते हैं तो उस इज्तिमा में रोड़े जमा किए जाते हैं। और इस वक्त आपके सामने है बाबा साहब का दरबार, आप भी आई हैं, गेट बंद है, ताला बंद है और सुन यही रहे थे कि जी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि दरबार को खोल दिया जाएगा। हमें तो ज़ियारत नसीब नहीं हुई, अंदर नहीं जा सके। अगर कोई और गया हो तो मैं उसका जिम्मा नहीं उठा सकता। मैं फाइनल वर्ड्स के लिए क्या आप कोई स्टेट के साथ, ज़ाहिर हम हालत जंग में है, दहशतगर्दी में है और अकेला पाकिस्तान की सिर्फ रियासत नहीं लड़ सकती, फोर्सेस नहीं लड़ सकती, पाकिस्तान के हर शहरी को लड़ना पड़ेगा। आप खुद मज़ारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं? करोड़ों रुपया यहाँ पर आता है और अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो हमारे मज़ारात हमें वापस कर दें। इंशाल्लाह ऐसा हम फुल प्रूफ इंतज़ाम करेंगे कि जिसकी इंतहानी इनसे आप पूछ लीजिएगा कि हुकूमत ने आज तक इनको इखलाकी तौर पर या माली तौर पर कितनी... सब कुछ तो करना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल हर चीज़ उसके लिए आप मिलके लोगों को, आपकी आवाज़ है, आपकी फॉलोइंग है, लोग आपको सुनते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जी मैं तो ये समझता हूँ कि हमें मज़ारात औलिया अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ारों को वापस करना चाहिए। स्टेट जो है ये नाकाम हो गई है। जो मज़ारात को टेक ओवर किया था करोड़ों रुपए से हासिल हो रहे हैं लेकिन उन मज़ारात के ऊपर खर्च नहीं हो रहे। और इसी तरह आवाम को पार्टिसिपेशन के लिए वही किरदार अदा करना चाहिए जो पाक पतन के आवाम ने अदा किया है। CCTV कैमरे जो मैं सिर्फ आखिरी सवाल जी इजाफा करना चाहता हूँ कि मुझसे ए दोस्त न कर मेरे तगाफुल का गिला, हाँ मगर गर्दिश अय्याम का शिकवा कर ले, जिंदगी तेरे लिए वक्फ तो कर दूं लेकिन डर रहा हूँ कहीं औकाफ न कब्जा कर ले। बहुत बेहतर, आप थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि मुझे जी। मैडम सिक्योरिटी के पेश नज़र तो पहले तो मेन पॉइंट ये है कि हमारे MPA साहब ने कहा कि दरबार में भी ये सानिया हुआ और रोड के बारे में बताया। रोड और दरबार अलग-अलग चीज़ है। रोड हर आदमी के लिए, दरबार फ़कत उनके लिए जो अकीदत रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं। और सिक्योरिटी के पेश नज़र आप देखें कि आज 4 दिन गुजर गए हैं, वज़ीर आला साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बयान दिया, इन्हें चाहिए था कि फ़ौरन दरबार शरीफ खोलते। इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। अभी तक दरबार में कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पे ये सानिया हुआ वहाँ भी महकमा औकाफ ने सिर्फ 9 इंच की पर्दी लगाई। अगर दोबारा वहाँ पे हो जाता है तो वही हाल होगा जो पहले हुआ है। मैंने उनसे बार बार अभी भी नाकिस है आपका कहना, और मैंने उन्हें बार बार ये कहा कि आप इस दीवार को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि ये महफूज हो जाए। लेकिन दरबार शरीफ में कोई कैमरे नहीं लगे, कोई तमीरात नहीं हुई, कोई। और देखें जब घर के चोर हैं हम बाहर किसको जाकर पकड़ें? मोटरसाइकिल कोई लाहौर से तो नहीं आया या इस्लामाबाद से नहीं आया। उस मोटरसाइकिल की कंडीशन ऐसी थी कि वो ढक्की ऊपर नहीं चढ़ सका, उसे धक्का लगा कर लाया गया तो वो यहीं से बरामद की गई। हमारी इंतजामिया ने उसके बारे में अभी तक कोई नहीं बताया, ना कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई। चॉइस ऑफ फाइनल वर्ड्स आपके कि किस तरह से अब ये सिक्योरिटी हम सबको अपना बंदोबस्त तो करना है। मैं सबसे पहले कोई मिलके सबके साथ मिलके कोई एक प्लान बन के हवाले से, औकाफ के हवाले से मैं इनको चैलेंज नहीं करता, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि औकाफ का जब डिपार्टमेंट बना था 60s में तो कंसेंट के साथ बना था। इनकी अराजी और गद्दियों का फैसला उसी वक्त हो गए थे, उसके बाद कोर्ट्स में भी चले। अब उनके मालकाना हकूक मिल चुके हैं उनके जो काश्तकारान थे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से कि ये जो दीवार अभी आर्जी तौर पे बनाई है ये फाइनल दीवार नहीं है, ना कोई फाइनल मैयर लिया गया है कि भी ये इसके बाद कुछ नहीं होना। अभी हमारी हुकूमत ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन आम करना नहीं। मेरी गुजारिश सुने ना, अभी 4 दिन पहले ये वाकया हुआ है। 4 दिन में हमने ना सिर्फ जख्मियों को संभाला है, शोहदा का
हमने ख्याल रखा है, दीगर जो इंतजाम थे वो कर रहे हैं, और इसके हवाले से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, और दीगर बाकी मामलात को भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो बात कहने वाली है, जो हल की तरफ लेकर जाने वाली है, वो जैसे उन्होंने फरमाया, टाइम कम रह गया, मैं आखिरी जैसे साहबजादा साहब ने फरमाया और हनीफ तैयब साहब ने फरमाया, हमें सबको मिल बैठ के, और सज्जाद साहब ने भी, हाजी साहब ने भी बड़ी अच्छी तजवीज दी है, ये बहसियत कौम एक होकर इस चीज को, हर पाकिस्तान में जितने मज़ार हैं उस इलाके के लोग हुकूमत के साथ मिल जाएं। मैं आखिरी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई आपसे एक वादा लेना चाह रहे हैं। जी साहब, क्या मुहर्रम में जो उर्स हो रहा है, थोड़ा सा आगे हो जाए, मुहर्रम में जो उर्स हो रहा है और जो अभी भी, क्या ज़ायरीन को यहाँ तंग नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी के नाम पर? लाखों लोग आएंगे, फिर बहिश्ती दरवाजे से पिछले साल भी थ्रेट थी, और उस वक्त के डीपीओ ने भी जुर्रत का मुजाहरा किया, नहीं बंद किया गया। उस वक्त भी हमने यहाँ पे ये इसको यकीनी बनाया था, और अब भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों के तावन के साथ और अपने इन कायदीन के तावन के साथ, अपनी हुकूमत के तावन के साथ इस चीज को मुमकिन बनाएंगे इंशाअल्लाह। कि ना सिर्फ ये दरबार खोले, बल्कि वो मैं आखिरी मुबारक भी पूरी तरह से आज जो हमने ये प्रोग्राम किया है, जी बहरहाल चाहे ये बात दुरुस्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे ये जो ऑर्डर था दरबार चीफ को, जी उनका फौरी तौर पे नहीं था, ये आपके मिसकंसेप्शन है, उनका ये नहीं था कि फौरी तौर पे खोल देंगे। हम सारे हालात का जायजा लेकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो करेंगे पाकिस्तान के तनाजुर। आज हमने ये प्रोग्राम जब यहाँ पर किया, सुबह से मैं और आप भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर हमें जगह मिल जाए, सिक्योरिटी कंसर्न से नहीं मिल पा रही थी। तो ये बात दुरुस्त है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं तो जरा हमें आसानी हो गई, शाम तक करते कराते बहरहाल हमारी बात मान ली गई। लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट है कि फिर इस वक्त बहरहाल इतनी सिक्योरिटी तो मौजूद है, इतनी तो दी गई कि इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ अगर हम इस वक्त खतरे में हैं तो वो पीछे जो पुलिस ऑफिसर सारे के सारे इस वक्त पूरे जिले की पुलिस हमारे साथ खड़ी है, वो भी यहाँ पर हमारे साथ ही हैं। तो वो कोई हमसे जुदा नहीं है, साहबजादगान हमसे जुदा नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। फैसला तो सिर्फ ये करने हैं का है कि अपनी अपनी जगह जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी वो अदा की जाए। जी वो अदा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने यहाँ पे सुनी, जितने लोग हैं यहाँ पे उन सबका ये कहना है कि बाबा फरीद किसी एक फिरके के नहीं है, वारिस शाह किसी एक फिरके के नहीं है, अब्दुल्ला शाह गाजी किसी एक फिरके के नहीं है, ये तमाम लोगों के हैं। सुल्तान बाहू किसी एक फिरके के नहीं है, ये तमाम मुसलमानों के हैं। और इस्लाम एक ऐसे मजहब, एक ऐसे नबी ने दिया, एक ऐसे नबी का मजहब है कि जिस पे कूड़ा फेंका जाता था तो वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करता था, और यही इस्लाम का दर्स है। उठ दर्दमंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशा विछियां ते लहू दी परी चनाब। हमें इस चनाब को लहू से पाक करना है, और ये सब पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान जो है ये हमारा घर है, हमारी नब्ज़ है, हमारी शारक है, हमारी जान है इस मुल्क के अंदर, और ये किसी एक फिरके का नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का है। इसी पैगाम के साथ कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, मुझे यहाँ पाकपतन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने